हेलो बच्चों, सो वेलकम टू शौर्य एकेडमी। सो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक, जिसमें हम प्रूव करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो क्या है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम? नाउ सी कि यहां पे मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो समझ लेते हैं, फिर बाद में डिराइव करेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस मीन्स व्हाट कि नाउ सी बच्चों, यहां पे आपको मालूम है मैंने ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, रिजिड ऑब्जेक्ट। सपोज इसका सिमेट्रिक शेप है, तो सेंटर ऑफ मास इज दिस वन। सपोज नाउ इनिशियली दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। नाउ सपोज सेम बॉडी नाउ इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, so this is now axis, correct? So it is like this, okay? So now axis of rotation is going to change. So in that case, we don't know how to calculate the moment of inertia about this axis, but we know the moment of inertia passing through center of mass. So if you observe this axis and this axis parallel to each other, so in that case we use the parallel axis theorem to find out the moment of inertia about any axis. So what are the conditions involved that we are going to study? So IC ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, दैट इज IC। ये हम लोग को पता है। I naught is the moment of inertia of an object about any axis which is parallel to this axis that we have to determine. Okay? Then law कहता है, theorem कहता है, axis is the sum of moment of inertia of an axis parallel to given axis passing through the center of mass and product, किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and the square of perpendicular distance between the two parallel axes, that is mh square. So बच्चों ये जो parallel axis theorem अभी प्रूव करना है, तो देखते हैं। So now see, first let us see what are the different conditions are used to apply to study this parallel axis theorem. Now see, पहले मैं हेडिंग दे रहा हूं conditions. What are the conditions so that we can apply this parallel axis theorem? So first condition कि बाबा आपने देखा the two axes must be parallel to each other. Two axes must be parallel to each other. So बच्चों यहां पे मैं फिर से डायग्राम निकालता हूं तो आपको समझ में आएगा. So I am considering this is rigid body. Now see, first we are considering here is the position of center of mass, here is the position of point O. Now we know this one is the moment of inertia of an axis passing through its center of mass. Second one is about moment of inertia of an axis passing through the point of O, about which we have to determine, and this h is the perpendicular distance between the two objects, two axes. Okay, so यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, तो पहला कंडीशन है कि बाबा ये दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए? एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों कि one of the two axes must be pass through center of mass. एक एक्सिस कंपलसरी कहां से पास करना चाहिए बच्चों? सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। तीसरा कंडीशन h is the perpendicular distance. h कैसा डिस्टेंस है? perpendicular distance between two parallel axes. सही बच्चों, so these are the three conditions must be satisfied when we are going to use the parallel axis theorem. तो बच्चों अभी इसका प्रूफ देख लेते हैं. So now see, so बच्चों यहां पे देख लो, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि बाबा कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि बाबा वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू फाइंड द डिस्क्रीट बॉडी, नहीं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एंड सेकंड हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी. सो आपने मालूम है, नाउ दिस वन इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, सो इन दैट केस वी मस्ट यूज अ फॉर्मूला दैट इज r square dm बिकॉज दिस वन इज अ कंटिन्यूअस बॉडी. सो इसीलिए हमने ये प्रूव करने के लिए बच्चों एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, dm. सही है? सो नाउ ये जो dm है
ये रोटेशनल मोशन कर रहा है अबाउट द व्हाट, one is about the IC and second one is about the I naught, this axis of rotation. So can I यहाँ पे write first case, case 1, when this dm mass is rotating about the first axis passing to the center of mass. So as per the relation, what is the IC, इसका distance क्या है, perpendicular distance. Now this distance we are considering the r. So what is the formula, r square into dm. ठीक है. Now case 2, about which we have to determine the moment of inertia is the what, it is the I naught. So आप देख रहे हो बच्चों, what is the distance of this dm mass element from this axis of rotation, it is r plus h. So यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r plus h ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dm. So आप देख रहे हो, कैन वी यूज यहां से a plus b ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, so नाउ यूज करते हैं. So I naught is equal to, देखो, r square into dm, मैंने सेपरेट भी क्या एक्सपांड कर रहा हूं, a square, so r square into dm प्लस b square यानी h square into dm प्लस तीसरा क्या बच्चों बोलो, कैन आई राइट यहां से, ठीक है, यहां पे राइट करता हूं. सो प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2rh into dm, a square b square twice ab. ठीक है. तो आपको मालूम है यहां से इंटीग्रेशन, सबसे पहले ध्यान दे दो बच्चों, व्हाट इज r स्क्वायर dm, इट इज द ic. कैन आई सब्स्टिट्यूट हियर, यस. सो I naught इज इक्वल टू ic प्लस बच्चों h क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो तो कांस्टेंट है. तो यहां से क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dm प्लस यहां पे भी बच्चों क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, सो क्या रहेगा 2h इनटू इंटीग्रेशन ऑफ r इनटू dm. आया क्या पक्का समझ में, ठीक है. सो नाउ सी बच्चों, क्या आपको मालूम है यहां से I naught is equal to IC. बच्चों व्हाट इज द इंटीग्रेशन, मतलब व्हाट, यू कैन टेक कलेक्शन dm, ऐसे बहुत सारे dm सब एलिमेंट्स को मैंने ऐड किया, तो वो क्या बनेगा, कैपिटल M which is the mass of an object. सही है. सो कैन आई राइट mh स्क्वायर. बच्चों देखा तो थ्योरम जो प्रूव करने का था वो तो हो गया. नाउ व्हाट अबाउट दिस टर्म, सही है, उसका बेसिक समझेंगे. सो यहां से बच्चों क्या बाकी है, मैं यहां से इंटेंशनली कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान दे दो सब लोग. बच्चों ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ r dm, अगर मैंने इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, मास से मल्टीप्लाई किया, मास से डिवाइड किया बच्चों, तो आपको मालूम है, यू ऑलरेडी स्टडीड इन द लॉज ऑफ मोशन, ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो कैन आई राइट m इंटू r COM. सो बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाबा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अबाउट विच द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी r सेंटर ऑफ मास मतलब ये जो पॉइंट आ रहा है सेंटर ऑफ मास, वही ओरिजिन का काम कर रहा है, वहां पे ही ओरिजिन है. सो ये जो प्रोडक्ट होगा वो तो 0 होगा, करेक्ट. ये प्रोडक्ट कितना होगा फिर, 0. मतलब क्या, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ dm है r dm, बच्चों ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो गई, 0. आया क्या पक्का समझ में. सो दैट्स व्हाई नाउ वी फाइनली प्रूव, क्या प्रूव करने का था हमको, दिस थ्योरम. सो व्हाट इज द फाइनल रिलेशन, यहां पे मैं लिख रहा हूं. सो I naught is equal to IC plus mh square. So this we have to prove parallel axis theorem. बच्चों अभी थ्योरम रिपीट करते हैं, ध्यान दे दो सब. आया समझ में. I naught means what, moment of inertia about any axis is equal to, बोलो what is IC, is equal to sum of moment of inertia of an axis passing through its center of mass and parallel to given axis and product of mass of an object and the square of perpendicular distance between the two objects. तो बच्चों है ना इजी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. आया क्या समझ में, करेक्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आया. इफ यू understood everything, so do not forget to like, share and subscribe. So पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. है वैभव सर, तो नई फिजिक्स का डर. थैंक यू.